Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Beamfall Construction. So today we will discuss about the sectioning in Navis, and with the help of that we will check the elements of each floors and from the different section plans like right, left or bottom. So with the help of this you can easily walk around through your building and each element you can see in detail. So basically बहुत ही important feature है sectioning. Without this I think sectioning features के बिना Navis useful without this not useful for all of us. So it is important to learn the different aspects, how you can create the different views, or you can check the building from the top, bottom and all sides. So in viewpoint, enable sectioning. Here you can find the move option. So current plane, you will provided with the 6 plane 1 2 3 4 5 6. In current plane 1 alignment, you can see in the left corner side top alignment, means from the top it will cut the building. So whenever I will click on move, the cursor will be available to move it up and down. And in alignment I can change the alignment like from right, left, top, bottom, all 6 faces of a cube: front, back, left, right, top, bottom. So current plane 1 in left side corner, you can see it is now controlling the right side view of that building, and by uh, clicking on the move, this cursor will be hide and unhide to control that view of the building. So you can now change it from the right to bottom, from the bottom to top, and from the top to front as per your options or requirement. So total, as I told you, current plane 1 it is showing, but you have 6 planes, so you can control 6 different views of the building in different plane. Like from the current plane 1 I want to control the top of the building, from the plane 2 I want to control the bottom of the building. Like that you can control. So as you can see here, as I move up, I can see each level 0, 1, ground floor and the top of the roof in detail by controlling the sectioning from the top. So as you can see here, by plane 2 now I can control the bottom, by plane 1 I am controlling the top, so by plane 2 I can control the bottom. Like that 6 planes are available there. So to move the from building from bottom, you have to select on the plane 2 after turning it on, and after selecting the alignment button for the plane 2. So for each plane, like plane 1 2 3 4 5 6, you have to select first the alignment, what alignment you want to see in plane. After that you have to turn on a bulb option is there in the current plane, you have to turn that on to control that plane. So and the another feature is link section plane. By this a particular height of that box will move. Like if you control the top plane and you move from the top, so it will also move from the bottom. A particular height will be set, and if you uncheck the link sectioning plane again, then it will control for the top only. So like for the plane 3, I want to see the building from the right side, from the right side wall. So you can go, you have to click on the align to surface. So whatever surface I will choose, the plane will get aligned to that surface. So like that, from the plane 3 I can control the building from the right side of the wall. From the plane 1 I am controlling from the top, from the plane 2 I am controlling from the bottom, and from the plane 3 I am controlling from the left side view of the house. So for that, if I choose the right view, it is not coming correct because my building is rotated in Revit. So I choose the option align to surface view. Now you can see here in the left side box and planes option in the top left side. So without using the plane, you can also control the sectioning through the box option. So a box will be created around the whole your building, and it is useful when you are working on a larger project and you have a very big area. So each time आप जो है टॉप बॉटम तो कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम द प्लेन्स, बट जो आपकी नेविस है वो फाइल बहुत बड़ी है, सो व्यू आपको पूरा टॉप से पूरा होल एरिया का दिखेगा। तो आप टॉप से
कंट्रोल कर एक पर्टिकुलर पोर्शन, स्मॉल पोर्शन बिल्डिंग का देखना चाहते हैं तो बॉक्स ऑप्शन ज़्यादा बेटर है आपके लिए। और उस बॉक्स की आप स्केल भी चेंज कर सकते हैं, लाइक बॉक्स का साइज बड़ा और छोटा, यू कैन कंट्रोल फ्रॉम देयर। So these are the important parts of the sectioning, in which you can control the sectioning through plane. First option, you can control the sectioning through box. Second option, and in box you जो है आपको प्लेन 1 2 3 के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वही बॉक्स स्केल के हिसाब से वर्क करता है। बट इन प्लेन आपके जो प्लेन 6 प्लेन है, उन 6 प्लेन से आप डिफरेंट साइड्स ऑफ द बिल्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट प्लेन से टॉप, सेकंड से बॉटम, थर्ड से राइट, फोर्थ से लेफ्ट, लाइक दैट यू कैन कर। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्यू पॉइंट इन नेविस। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द व्यू पॉइंट। सो आप देख सकते हैं होम टैब के पास आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यू पॉइंट का, अदरवाइज आप व्यू टैब में जाके विंडोज में जाकर यहाँ पर आपको सेव व्यू पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा। तो इन पर ऑप्शन पे जाकर आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सेव व्यू पॉइंट्स की जो है टेबल ओपन हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं जिसमें हमारी टेबल है। हर NWD आप ओपन करते हैं, NWD मीन्स कॉम्बिनेशन है आपका, NWC का आर्किटेक्चर का, स्ट्रक्चर का, मैकेनिकल का, तो उसमें कुछ सेव व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं कि क्लाइंट्स की तरफ से आपको ऑलरेडी मिले, तो वो जो है यहाँ पर फोल्डर्स के अंदर विजिबल होंगे। इसी के साथ आप आपकी तरफ से व्यू पॉइंट्स बनाना चाहते हैं फॉर QC पर्पस या आपके इंटरनल पर्पस मॉडल की हेल्थ के लिए, और जो आपके MEP के एलिमेंट्स हैं उनके लिए, तो आप व्यू पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको जाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट एंड ड्रॉ का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो आप जो है आपके जो भी फ्लोर वाइज, आप उसमें रूम वाइज, सीलिंग वाइज आप जा सकते हैं, एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं। और आपको कहीं पे भी इशू दिखता है तो आप जो है, जैसा कि ड्रॉ का ऑप्शन आपको दिख रहा है, उस ड्रॉ पे आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको इलिप्स, आपको आर्क, आपको लाइन जो है ड्रॉ करने के ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप जब जो है उस व्यू पर, पर्टिकुलर व्यू पे जाकर आपको इशू दिखा, फॉर एग्जाम्पल केबल ट्रेस क्लैशिंग विद डक्ट, सो आप सर्कल बनाकर वहाँ पर टेक्स्ट से लिख सकते हैं केबल ट्रेस क्लैशिंग विद डक्ट, लाइक दैट। यहाँ पर जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर आपको इशू लग रहा है कि प्लांटेशन नीड टू बी शिफ्ट लेफ्ट साइड, और जो अगर कोई क्लैश है, तो आप जो है सर्कल ड्रॉ करके उस पर टेक्स्ट से लिख सकते हैं। और ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं व्यू अंडरस्कोर 1 ब्रैकेट 1, तो ये ऑटोमेटिकली जो है नेमिंग क्रिएट होती जाएगी। जब भी आप कुछ ड्रॉ करेंगे और टेक्स्ट से लिखेंगे तो वो एक व्यू पॉइंट सेव हो जाएगा। आप ड्रॉ करेंगे फिर एक व्यू पॉइंट से हो जाएगा। तो इस तरीके से व्यू पॉइंट जो है वहाँ पर एक पर्टिकुलर नेमिंग के साथ अपडेट होते रहेंगे। आप उन्हें रीनेम कर सकते हैं फर्दर। और जब भी आप बिल्डिंग्स के किसी भी पोर्शन में हैं, फॉर एग्जांपल आपने व्यू पॉइंट लेवल 1 पे क्रिएट किया, व्यू नेम से ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ, और अब आप लेवल 5 पर व्यू कर रहे हैं, अब आपको पता नहीं है आपने वो व्यू पॉइंट कहाँ बनाएगा। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप जैसे ही व्यू पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सेम व्यू सेम एंगल पे आपको वापस उसी बिल्डिंग के रूम में ले जाएगा जहां आपने वो व्यू क्रिएट किया था, व्यू पॉइंट क्रिएट किया था। तो इसका जो है, इस वजह से व्यू पॉइंट सब बेनिफिट रहते हैं, और साथ ही सेम जो भी आपने मार्कअप दिए थे वो सेम मार्कअप आपको व्यू पॉइंट पे दिखेंगे। इसी के साथ जो है आप मेजर ऑप्शन का भी यूज़ करके जो है कुछ व्यू पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मेजर से आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट मेजर कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कंटिन्यूस मेजर कर सकते हैं, आप एंगल मेजर कर सकते हैं। सो इसका यूज़ करके भी जो है आप व्यू पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सेव व्यू पॉइंट का ऑप्शन आपको मिलेगा राइट साइड क्लिक करके। जब भी आपको कोई डायमेंशन मेजर कर चुके होंगे और आप उसे सेव व्यू पॉइंट पे जाकर राइट एंड आपको राइट माउस कर्सर पर क्लिक करना है, सेव व्यू पॉइंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेबल पे जाकर। इसी के साथ जो है आप आपके व्यू पॉइंट्स को रेड मार्कअप में भी जो है आप जब सेव करोगे तो ये ऑटोमेटिकली व्यू पॉइंट पे सेव हो जाएगा। तो 2 ऑप्शंस है, या तो आप डायमेंशन देकर टेबल पे जाके राइट हैंड साइड जो आपका राइट माउस कर्सर होता है उस पर क्लिक करके सेव व्यू पॉइंट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज डायमेंशन देने के बाद ऊपर आप देख सकते हैं कन्वर्ट टू मार्कअप का ऑप्शन एक आ रहा है, उस पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी डायमेंशन को भी ऐसे व्यू पॉइंट सेव कर सकते हैं। तो अभी तक आपको डायमेंशन को व्यू पॉइंट सेव करना बताया। दूसरा, आपके कोई भी जनरल आप कुछ भी क्लैश या कुछ भी आपको कमेंट आपकी टीम को देना है मॉडल को सही करने के लिए,
तो आप कोई भी ज्योमेट्री ड्रॉ करके आर्क, एलिप्स, लाइन वगैरह से और टेक्स्ट लिखकर आप उसे व्यू पॉइंट सेव कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट रहता है हमारा। डायमेंशन मेजर करते समय एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जब भी आप डायमेंशन मेजर करते हैं, अगर आप प्रिसाइज डायमेंशन चाहते हैं तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारी अलमीरा की हाइट है वो 7 फीट समथिंग आई है, और आप देख सकते हैं कि जो हमारी लाइन है वो पर्टिकुलर पूरी मतलब जो सरफेस है हमारा अलमीरा का उसके पैरेलल नहीं चल पा रही। तो इसके लिए मेज़र के पास आपको एक ऑप्शन और मिल रहा है लॉक का। इसमें जो है आप डिफरेंट एक्सेस लॉक कर सकते हैं, लाइक एक्स वाई जेड। तो जब भी आप डायमेंशन मेज़र करेंगे तो उस एक्सेस के थ्रू पर जो है आपका परपेंडिकुलर चलेगा और आपका पैरेलल चलेगा, उसमें कहीं पे भी डिविएट नहीं होगा। तो अभी जैसे हमने जेड एक्सिस लॉक करी है तो जेड एक्सिस में ये जो हमारा डायमेंशन का लाइन है बिल्कुल परफेक्ट पैरेलल चला है, कहीं पे भी डिविएट नहीं हुआ है। तो अब जो डायमेंशन हमारी परफेक्ट हमारे रेविट में उस ज्योमेट्री की थी वही नेविस के अंदर दिखाई जा रही है। अदरवाइज पहले हमारी जो थी 7 फीट के अप्रोक्स आ रही थी। तो डायमेंशन मेजर करते समय इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, अदरवाइज आपकी डायमेंशन जो है वो अप्रोक्स मेजर होगी, कभी भी एग्जैक्ट मेजर नहीं हो पाएगी। और कन्वर्ट टू मार्कअप का ऑप्शन आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, उस पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये रेड मार्कअप में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इसी के साथ आपके ऑटोमेटिकली कई व्यू पॉइंट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और एक फोल्डर बना के उस फोल्डर के अंदर उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। आपके नेम का या आपके प्रोजेक्ट की नीड के हिसाब से आप पर्टिकुलर आपका खुद का फोल्डर बनाकर उसमें ट्रैक कर सकते हैं, तो एक सेपरेशन रह जाता है और इनको एक्सपोर्ट करके आपके टीममेट्स के साथ शेयर कर। So today we will discuss about the selection set and search set in Navis, and what are the difference between both and what are the benefits and drawbacks of both the sets. So ये एक हमारा अभी मॉडल है, एक 3D हाउस जिसको अभी हम एक्सपोर्ट दे रहे हैं। We are exporting it as a NWC file, and later on we will see in Navis how the search set and selection sets are created and what are the major differences between them. एंड आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, सिलेक्शन सेट और सर्च सेट, वो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, ये एक हमारा 3D हाउस मॉडल दैट इज ओपन इन आवर नेविस वर्क, एंड एज यू कैन सी इन सिलेक्शन ट्री एज पर द डिफरेंट लेवल्स लाइक फाउंडेशन, लेवल 1, रूफ, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सिलेक्शन ट्री। सो फर्दर हम स्टार्ट करते हैं हाउ यू विल क्रिएट द सिलेक्शन सेट एंड सर्च सेट। सो जो बेसिक हमारा सिलेक्शन सेट का प्रोसीजर होता है इन विच यू हैव टू मैनुअली सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट द सिलेक्शन सेट फॉर द वॉल्स देन यू हैव टू मैनुअली सेलेक्ट द पर्टिकुलर वॉल्स, लाइक 200 mm साइज के आप पर्टिकुलर वॉल्स सेलेक्ट करके उसका एक सिलेक्शन सेट क्रिएट कर सकते हैं। देन फॉर द 150 mm width you have to again manually select the 150 mm width of wall, then you have to save that selection again. So this is a full manual procedure, you have to select manually. So as you can see in the screen, we have to first go to sets, then manage set, then a window tab will be open for the sets in front of you in Navis. So now first you, as I told you, you have to select the elements manually, like for plumbing fixture or HVAC or electrical, whatever services, for whatever services you are going to make the selection set, you have to select them manually by here. So for an example, I am selecting the roof wall manually here. So total 4 walls I have selected, and as you can see in the left side corner of the set, the first one is the selection set, and I will click on this, rename as a rooftop walls. So I have selected 4 walls, and now I will just click on the selection set, that is rooftop walls, and it automatically select all 4 those walls. So obviously it saves the time. Every time you did not require to select all the 4 walls again and again, you can simply click on the selection set. But now as you can see, I have selected only 4. Now I have to add more in that particular set, then I have to go update after selection, then the same procedure will be completed. Again my selection set is updated here. So this is the basic procedure of the selection set. So here as you can see, we have to select each wall manually. So this is the basic and the major difference between the selection and the search set.
So let's first of all go through this table. You will, and later on I will create a search set for the same one, and you will know the basic difference easily. So first of all, these are the definition. A user defined group of objects selected manually. Search set is a dynamic based specific criteria search set. Means any parameter like a wall. You can say a width of wall is 200 mm and some walls having 150 mm. So if you put a search there to find the walls which are having the width of 200 mm, then automatically create a set for them. This is known as a search set function, you can say. So this is the whole procedure of the search set. Means you are searching for a parameter value of an element. Means for a specific value of any parameter of an element you are searching that, and then you are saving the selection as a search set. So basically ये पैरामीटर्स बेस्ड होता है, और जो हमारा सिलेक्शन सेट होता है दैट इज मैनुअली, वो किसी पैरामीटर से रिलेटेड सर्च करके सेव नहीं करता किसी भी एलिमेंट के ग्रुप को, but in search set you can create that. So as you can see here, properties, and you will select any of the wall. You will found here that the name of this wall is SIP 200 mm wall, and there are many other wall which are having the different name. So I will search for this wall in the whole particular building. Now as you can see here, find items. After find items you have to choose the category. Okay, so in category you will select the element, the same element which we are seeing in the properties, and in the element tab what you have to select, name or name. So here we will go for the type and name, both are same. Then here we will found the equal to SIP 202 wall conclave. So the same name we will put here, SIP. So this one. Now bottom left side you will find the option for find all. So all the wall which are having this property, means in element type it is having SIP 202 wall, all will be selected. Now go to left side corner, you will found here just after the selection set here search set option, and you will save it. So selection set and search set, we can save a group of elements with the help of them. So whenever you go and click on those set, it automatically selected that group of elements and save your time each time. You did not have to manually select, or you did not run required to run this parameter again and again. So these are basically helpful in Navis, and by this you can also run the clash test. By this also you can set the appearance profiler also. So these are helpful in those categories also, and you can turn hide and unhide element by the help of these sets also. So these are the basic difference between the selection set and search set. Each time you have to select manually for the selection set, and in search set you will just search for a value of any parameter of an element, and then you will save that selected group based on that searched parameter as a set. So basically if I create the SIP 202 wall in my Revit again, and I will export that model again in Navis, then that wall will automatically be saved in that search set. I did not need to run that search item, and I did not need to search for that SIP 202 wall again. Then again I did not require to save that set, and this is the benefit of search set. You did not require to set again and again of the same search set for the same value. But in selection set, as I told you, if you want to update something, you have to select manually again, then you have to click on update. So this is the measure, and
the basic difference between both the set. So I have created a SIP202 wall again in the Revit and exported it as a WC. So when I go to and select my rooftop wall set selection set, only those elements which we have selected manually are saved as a set. But in the search set, as you can see here, the SIP202 wall that I created newly in the Revit also is a part of search set without running that find items again or without updating the search set again. So it becomes automatically part of that search set because it is having the same parameter SIP202 value based on which our search set is created. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो आज हम डिस्कस करेंगे अपीयरेंस प्रोफाइलर इन नेविस क्या होता है और हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। So first of all, definition: the appearance profiler allow you to set up custom appearance profile based on sets, search and selection set or either properties value. So for example, अगर आपने आपके ड्रेनेज और आपके HVAC, आपके फायर और आपके आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के जो नेविस एक्सपोर्ट है वो नेविस के अंदर अपेंड करा रखे हैं और आप जो है कलर अलग विजिबल करना चाहते हैं। फॉर सपोज ड्रेनेज का आप ग्रीन या HVAC का ब्लू आप कलर चेंज कर कर उस नेविस फाइल को आप विजिबल देखना चाहते हैं, या पर्टिकुलर HVAC में भी आप जा सकते हैं, जैसे कि रिटर्न एयर का अलग कलर चाहते हैं, एग्जॉस्ट एयर डक्ट्स के अलग कलर चाहते हैं, तो आप जो है सेट बनाकर और अपीयरेंस प्रोफाइलर से उन पर्टिकुलर सेट का कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एग्जॉस्ट एयर डक्ट का, रिटर्न एयर डक्ट का, सप्लाई एयर डक्ट का एक सेट्स बनाया तीनों का अलग अलग और तीनों को अलग अलग कलर दे दिया अपीयरेंस प्रोफाइलर से। सो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेट बनाना होगा या आप बाय प्रॉपर्टी सर्च करके भी किसी एलिमेंट्स को आप जो है कलर दे सकते हैं आपके नेविस में। सो इसके लिए आपको होम पर अपीयरेंस प्रोफाइलर का ऑप्शन मिलेगा। टू सेट्स हमने ऑलरेडी अपने यहाँ बना रखे, एक हमारा सिलेक्शन सेट है, एक सर्च सेट है। सिलेक्शन और सर्च सेट के बारे में हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो आप जाके देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अभी जो हमारा प्रोसेस है अपीयरेंस प्रोफाइलर का, इसमें बाय सेट पे हम गए बिकॉज हमें सेट का यूज़ करना है जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आफ्टर दैट, जो कि टेस्ट सिलेक्शन में हम कलर चूज़ करते हैं, उसके सामने आपको ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिलता है एंड आपको जो है सिंपली कलर को ऐड करना है जिससे कि वो सेलेक्टर के टेबल में आ जाएगा और रन कर देना है। तो रन करते ही आप देख चुके हैं कि जो हमारा पहला सेट था रूफ टॉप वॉल्स, उस सेट को हमने येलो कलर दिया है और वो ऐड हो चुका है नेविस व्यू के अंदर। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड था उसको हमने रेड कलर दिया है। ऐड करते ही जैसे ही हमने रन किया है तो उसे रेड कलर मिल चुका है। सेट हमने कैसे बनाए थे ये हमारी आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देखें, उसमें हमने डिटेल में बताया। ट्रांसपेरेंसी अगर हम 70% रखेंगे तो जो वॉल्स है उनकी कलर के साथ जो ट्रांसपेरेंसी है वो अपीयरेंस जो है एक तरह से वो 70% डिम हो जाएगी। तो अपीयरेंस पे यहाँ से कलर और ट्रांसपेरेंसी दो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं अपीयरेंस प्रोफाइल से। इसका यूज़ फॉर सपोज अगर आपको देखना हो कि स्ट्रक्चर में आपके बीम्स कहाँ कहाँ है, तो आप बीम्स का एक सेट बना लेंगे, उसे रेड कलर दे देंगे, तो आपको एक प्रोजेक्ट में ओवरव्यू करते समय ईजी रहता है कि हमारी बीम्स और कॉलम्स कहाँ है, उससे हमारी किसी MVP सर्विसेज का क्लैशेस तो नहीं हो रहे। तो आप इसका यूज़ करके अपीयरेंस प्रोफाइलर का ईजिली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप वापस अपडेट कर सकते हैं और अपडेट का ऑप्शन यूज़ करके सेम ही जो सेट और सेम ही कलर जो आपने डाले हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी वगैरह या कलर अपडेट करके यहाँ से अपडेट आप कर सकते हैं आपके अपीयरेंस को। इसके साथ हमारा नेक्स्ट बाय प्रॉपर्टी। सो बाय सेट और बाय प्रॉपर्टी टू मेथड से हम जो है अपीयरेंस प्रोफाइलर को कलर दे सकते हैं। बाय प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉपर्टी आप किसी एलिमेंट को पिक करते हैं और उसकी आपको राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है, तो आप किसी प्रॉपर्टीज का यूज़ करके उसे जो है अपीयरेंस प्रोफाइल के थ्रू कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कैटेगरी में भी हमने एलिमेंट प्रॉपर्टीज का जो टैब है एलिमेंट का यूज़ किया। एलिमेंट में टाइप में आप देख सकते हैं रिटेनिंग 300 mm कॉन्क्रीट की जो वॉल है हम वैल्यू में लिख देंगे। उसके साथ ही उसको एक कलर ऑप्शन यहाँ से हम ब्राउन कलर दे हैं और जैसे ही हम ऐड करेंगे वो टेबल हमारी राइट साइड सिलेक्टर में आ जाएगी और रन करते ही जो है एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बाय प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी जो है अपीयरेंस प्रोफाइलर के थ्रू किसी भी हमारा जो मॉडल एलिमेंट है उसको कलर दे सकते हैं नेविस के अंदर।
सो ये है हमारा अपीयरेंस प्रोफाइलर के बारे में। और इसका जो यूज़ है वो आप साइट बनाकर करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो भी हमारे साइट होते हैं जैसे HVAC डक्ट का और हमारे ड्रेनेज के पाइप्स हो गए, हमारा वाटर सप्लाई हो गया, हॉट वाटर कोल्ड वाटर, सबका सेट्स बना के आप अपीयरेंस प्रोफाइलर का यूज़ करके उन सब सर्विसेज को अलग अलग कलर दे सकते हैं। और इसी के साथ ही इससे भी ज़्यादा बेहतर जो होता है कि आप रेविट के थ्रू ही आपकी जो सर्विसेज है उनको एक्सपोर्ट दे कलर वाइज रेविट के थ्रू ही। और ये कैसे दे सकते हैं वो हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। आप जो है रेविट के अंदर मटेरियल ब्राउज़र में जाकर जो है मटेरियल ब्राउज़र को जब आप कलर असाइन करेंगे तो जब भी उसका नेविस एक्सपोर्ट देंगे 3D व्यू से तो वो ऑटोमेटिकली कलर के साथ विजिबल होगा। सो यू कैन आइदर सेटअप अपीयरेंस प्रोफाइल इनसाइड नेविस और आप रेविट के थ्रू डायरेक्टली मटेरियल ब्राउज़र के थ्रू एक्सपोर्ट देते समय कलर असाइन कर सकते हैं। सो रेविट में कलर असाइन करने का हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं। फिल्टर्स के थ्रू आप कलर असाइन कर सकते हैं। देन जो आपके सिस्टम्स होते हैं जैसे पाइपिंग सिस्टम या डक्टिंग सिस्टम, उनके थ्रू भी जो है आप कलर असाइन कर सकते हैं रूटिंग प्रेफरेंस में जाकर। बट वो कलर जब आप नेविस एक्सपोर्ट देंगे तो कलर आपको नेविस में विजिबल नहीं होंगे। ओनली वो कलर जो कि आपके मटेरियल ब्राउज़र में जाके मटेरियल के थ्रू गिवन है और उसमें वो कलर ऐड है तो ही एक्सपोर्ट में आपको नेविस में विजिबल होगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आप मटेरियल ब्राउज़र में जाके उस पर्टिकुलर मटेरियल को आपको वो कलर दे सकते हैं जो कि आपने डिसाइड किया है। तो रेविट से एक्सपोर्ट देने के बाद नेविस में भी जो है वो कलर ऑटोमेटिकली विजिबल होगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सिलेक्शन इंस्पेक्टर, जो कि एक नेविस वर्क का टूल है। और इस टूल के यूज़ करके आप जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं। जो भी आप प्रॉपर्टीज़ डिफाइन किए हैं उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ आप देख सकते हैं और उसे एज एन एक्सपोर्ट देकर CSV फाइल आप सेव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं होम स्क्रीन जो हमारा नेविस वर्क में होम टैब के अंदर आपको एक सेट्स के पास एक आइकन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन इंस्पेक्टर की विंडो आपके पास पॉपअप हो जाएगी जो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारी विजिबल है। साथ ही सेट्स काउंट पे क्लिक करेंगे तो सेट्स की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। तो 2 सेट्स हमने क्रिएट कर रखे हैं। फर्स्ट वन हमारा सिलेक्शन सेट है, सेकंड वन हमारा जो है सर्च सेट है। इसके ऊपर भी हम वीडियोस बना चुके हैं। सो आप देख सकते हैं जब भी हम सेट सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस सेट के अंदर जो पर्टिकुलर हमारा एलिमेंट्स है वो सेलेक्टेड हो रहे हैं तो उसके जस्ट पास में सिलेक्शन इंस्पेक्टर की जो टेबल है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर विजिबल हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं आइटम नेम, बेसिक वॉल, आइटम टाइप, वॉल। और आप देख सकते हैं ये पूरी वैल्यूज़ कहाँ से डिराइव कर रहा है, ये प्रॉपर्टीज़ में से। जो प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट की, जब भी हम रेविट से एक्सपोर्ट देते हैं WC फाइल को तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी अगर आपने एक्सपोर्ट दिया है तो वो प्रॉपर्टीज़ भी आप नेविस के अंदर विजिबल होगी। और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को जो है सिलेक्शन इंस्पेक्टर में अब आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ विजिबल करानी है वो आप डिफाइन कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अभी आइटम नेम और आइटम टाइप यहाँ पर विजिबल हो रहा था, अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ आप देखना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने आइटम और GUID वैल्यू उसकी हमें चाहिए। तो जो भी वॉल है उसकी GUID अब यहाँ पर ऐड हो चुकी है। हमें नेक्स्ट और कुछ वैल्यू ऐड करनी है तो वो प्रॉपर्टीज़ में से हम क्या वैल्यू और ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम एलिमेंट में से एलिमेंट ID का एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है ID का, इसमें 231 जो वैल्यू है समथिंग हमारी ID में एक वैल्यू है। हम यहाँ पर चाहते हैं कि जब भी हम कोई एलिमेंट सेलेक्ट करें तो सिलेक्शन इंस्पेक्टर में उसकी ID विजिबल हो हमें। सो इसका बेनिफिट ये होता है कि मल्टीपल जब आप सेलेक्ट करते हैं चीज़ें तो लिस्ट आउट में वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मल्टीपल की एक साथ दी जाएगी। एक ये बेनिफिट है। सेकंड, आप जो है सिलेक्शन इंस्पेक्टर से जो भी आपने एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं जो प्रॉपर्टीज़ उनकी विजिबल हो रही है उसको आप एक्सपोर्ट भी दे सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए अभी हमने उस हिसाब से कैटेगरीज यहाँ पर सेट करी है। और अब देखिए आइटम नेम, बेसिक वॉल, एलिमेंट ID और आइटम का GUID यहाँ पर शो कर रहा है। और शो आइटम पे आप क्लिक करेंगे तो उस पर जूम कर देगा। अगर आपने 5-6 आइटम को एक साथ सेलेक्ट करके बनाई है टेबल तो आप पर्टिकुलर पे जाना चाहते हैं तो शो आइटम पे क्लिक कर दिए। जैसा कि यहाँ पर अभी हमारे पास सिलेक्शन सेट में 6 टोटल हमने सेलेक्ट करके सिलेक्शन सेट बनाया था तो ये पर्टिकुलर आप किसी भी आइटम के शो पे क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट पे चला जाएगा। और इस तरीके से ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर विजिबल हो रही है।
सो ये सिलेक्शन इंस्पेक्टर का काम है। सो इसके बेनिफिट, एक तो आप CSV एक्सपोर्ट दे सकते हैं प्रॉपर्टीज़ का NWC से डायरेक्टली, और सेकेंडली जो है आप मल्टीपल एलिमेंट जो आपने सेलेक्ट किए उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आप देखना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली वहाँ पर विजिबल हो जाएगी, टेबल लिस्ट आउट ऐड होता जाएगा, जैसा कि अभी आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड कॉर्नर स्क्रीन पर सिलेक्शन इंस्पेक्टर में दिख रहा था। तो ये बेनिफिट है इसके। और इसी के साथ आप यहाँ से जो भी है एलिमेंट को सिलेक्ट करके और सेव सिलेक्शन करके यहाँ से भी सिलेक्शन सेट क्रिएट हो जाते हैं। तो सिलेक्शन सेट और सर्च सेट के बारे में हमने बहुत ही डिटेल और बहुत ही इजी क्लियर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके देख सकते हैं। इसी के साथ एक्सपोर्ट में आपको CSV एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसको एक्सपोर्ट देने के बाद जो है आप आपके WSP और एक्सेल के थ्रू उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पर आइटम नेम, एलिमेंट ID और आइटम GUID, सो आप मॉडिफाई कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। एंड फर्दर ऑन आप इस CSV फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं PDF फॉर्मेट आपके XLX में। सो ये हमारे कुछ जो है सिलेक्शन इंस्पेक्टर के बेनिफिट्स है नेविसवर्क के अंदर। सो क्विक प्रॉपर्टी डेफिनेशन, ऑप्शन एडिटर, यहाँ से आप सारी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉर्मेट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो फॉर्मेट आप कैसा चाहते हैं। और सिलेक्शन और साइट के बारे में आप डिटेल में हमारी वीडियोस देख सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लैश डिटेक्शन टूल के बारे में, जो कि हम नेविस में यूज़ करते हैं। और इसके थ्रू जो भी हमारे रेविट मॉडल्स है उनके बीच में अगर कोई क्लैशेस है तो हम वहाँ पर इजीली विजिबल कर सकते हैं, और उसके बाद वापस हमारे रेविट मॉडल के अंदर उन क्लैश को रिजॉल्व कर वापस हमारे एक्सपोर्ट के थ्रू फाइल्स को चेक कर सकते हैं कि क्लैश रिजॉल्व हुए या नहीं। सो फॉर सपोज अगर आपके फायर और HVAC में कुछ क्लैशेस है तो आप दोनों के मॉडल से NWC एक्सपोर्ट दे सकते हैं और उन्हें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने एक फ़ाइल यहाँ पर एक्सपोर्ट दे रखी है और कुछ सेट्स बनाए हैं, जैसे डक्ट का HVAC के नाम से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में। एंड जो हमारे पाइप्स हैं उनका पाइप्स के नाम से हमने सेट बनाया है। तो सेट्स कैसे बनाते हैं उसका हम जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर हमारी नेविसवर्क जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर ये सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लैश डिटेक्टिव टूल आपको मिलेगा होम टैब के अंदर ही, और उसमें जो आपको टॉप राइट साइड कॉर्नर के अंदर ऐड टेस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो डिफ़ॉल्ट नेम टेस्ट का जो आएगा टेस्ट 1 आएगा। हियर आपके पास जो है सिलेक्शन A, सिलेक्शन B। तो सिलेक्शन A में आप HVAC की फाइल ले सकते हैं, सिलेक्शन B में आप ड्रेनेज, प्लम्बिंग, फायर किसी की भी फाइल ले सकते हैं जिससे आपको क्लैश देखना है। अदरवाइज़ अगर आप स्टैंडर्ड से नहीं जाकर सेट से क्लैश टेस्ट रन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेट चूज़ करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन A में HVAC चूज़ किया हमने और B के अंदर जो है हमने पाइप्स चूज़ किया है। सिंपली रन पर आपको क्लिक करना है और जो क्लैश है वो आपका रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं रेड और ग्रीन में हमारी जो साइट्स है उन दोनों के बीच में क्लैशेस है। तो टोटल नंबर ऑफ क्लैश 2, और अभी रिसेंटली हमने रन किया है तो न्यू का डेटा भी 2 ही है। तो ये इसी तरीके से आपको सेकंड टेस्ट बनाना हो, फिर वापस आप एड टेस्ट पे जाएंगे, देख सकते हैं आप ऑप्शन। देन अगेन आपको फाइल के बीच में कराना है या सेट के बीच में टेस्ट कराना है वो चूज़ करेंगे और अगेन रन करेंगे। तो सेकंड टेस्ट में जो है हमने वॉल और पाइप चूज़ करी थी, जो कि हमारा क्लैश है ही नहीं। जो वॉल्स और पाइप्स है उन दोनों में बहुत गैप है, तो वहाँ कोई क्लैश नहीं। इस वजह से इसका जो क्लैश रिपोर्ट आया उसका डेटा 0 है। इसके अलावा कुछ हमारे पास यहाँ ऑप्शन तो हैं रूल्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको क्लैश इग्नोर करना है कि सेम लेयर के अंदर ऑब्जेक्ट है तो क्लैश इग्नोर किया जाए। प्रॉपर्टीज़ जो हमारा टैब आता है नेविस में, उसमें आइटम्स में आपको लेयर का एक प्रॉपर्टीज़ का पैरामीटर मिलता है, जिसमें अगर किसी भी जो आपको सिलेक्शन में आपने चूज़ किए हैं डक्ट और पाइप्स और उनके बीच में क्लैश है 10, लेकिन अगर 10 में से 5 एलिमेंट सेम लेयर में है तो वो उस क्लैश को इग्नोर कर देगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ रूल्स है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिपेंडेंट रहेंगे। सो आइटम्स इन सेम लेयर, जो कि मैंने आपको बताया है कि नेविसवर्क्स में एक प्रॉपर्टी आपको विजिबल होगी और उसके आइटम
जो टैप है उसमें लेयर वाला एक प्रॉपर्टी रहेगा। तो अगर सेम लेयर का ऑब्जेक्ट है तो जो है क्लैश वहाँ पर इग्नोर हो जाएगा। और लेयर से क्या मतलब है नेविस और रैबिट के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में, इट इज़ द लेवल। बस मीन्स कि जो पर्टिकुलर लेवल है लेवल 1 उसके क्लैश इग्नोर हो जाएंगे फायर और डक्ट के बीच में, या जो भी सर्विसेज आपने चूज़ करी है। सो देखिए आप अभी जो है हमने उस पर चेक किया है और टेस्ट अब रीसेट करके और अपडेट करेंगे तो क्लैश जो है 0 हो चुके हैं। रूल सेलेक्ट करने के बाद रीसेट देन अपडेट होगा। अगेन हमने वापस अनचेक किया, रीसेट और रन किया तो आप देख सकते हैं क्लैशेस वर्क अगेन 2 विजिबल हो गए। तो इस तरीके से 4 आपको इग्नोर करने के क्लैशेस के रूल्स यहाँ पर दिख जाएंगे। और इसी के साथ आपको और न्यू क्रिएट करने का ऑप्शन भी एडिट के थ्रू और न्यू का ऑप्शन आपको वहाँ पर विजिबल होगा, तो उससे आप और रूल्स कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली इनका यूज़ वैसे तो मिनिमम ही होता है, बहुत कम यूज़फुल होते हैं ये डिफ़ॉल्ट क्लैश रूल्स, बिकॉज जो है हम थ्रूली चेक करते हैं हमारे 2 सर्विसेज के बीच में क्लैशेस, चाहे वो लेवल वाइज हो या जो है अपने सेम ब्लॉक में हो, सेम फाइल में हो, तो जो है हम क्लैशेस सारे ही देखना चाहते हैं हमारे नेविस में और हमें सभी ही रिजोल्व करने होते हैं। सो ये है हमारा रूल्स के बारे में। और नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब भी हम क्लैश रन करते हैं तो एक फाइल हमारी रेड कलर के अंदर विजिबल होती है एंड दूसरी जो है हमारी ग्रीन के अंदर विजिबल होती है। तो अभी जब हमने टेस्ट 1 क्लैश रन किया था उसके रिजल्ट पर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं डेक्ट रेड में और जो पाइप्स है वो हमारी ग्रीन कलर में विजिबल हो रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं कलर तो आपको फाइल्स जो आपका नेविस मैनेज है उसमें ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाकर और यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हैं। इसमें आप टूल्स पर आप क्लैश डिटेक्टिव का ऑप्शन आपको दिख रहा है। सो आइटम 1 एंड आइटम 2, सो इन बोथ का जो है आप कलर चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ से जो है आपके कलर चेंज का ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा ऑप्शन के अंदर जाकर नेविस में। आफ्टर दैट यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले की कुछ सेटिंग्स मिलती है कि अदर क्लैशेस को आपको क्या करना है, हाइड करना है। अभी क्लैश 1 पर है तो अदर क्लैशेस आपको नहीं दिखे या अदर दिखे तो डिम रखना है उन्हें। तो ये ऑप्शंस आपके सूटेबिलिटी के ऊपर है, आपको कैसे सूटेबल होता है नेविस का इंटरफेस वर्क करने में का ईजी किस सेटिंग्स पर रहता है डिस्प्ले, तो वो आप डिस्प्ले सेटिंग आपके हिसाब से अपडेट कर सकते हैं कि वन टाइम पे केवल पर्टिकुलर क्लैश ही दिखाना है या हाईलाइट ऑल क्लैशेस करना है। तो ये सब डिस्प्ले सेटिंग है जो कि इंडिविजुअल अपने हिसाब से सेट कर सकता है, उसको वर्क करने में जिस सेटिंग से इजी हो वो वैसा अपडेट कर सकता है। तो डिम अदर्स, हाइड अदर्स, ट्रांसपेरेंट डिमिंग और सारे क्लैशेस एक साथ दिखाना, हाईलाइट ऑल क्लैशेस, ये ऑप्शंस आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके साथ ही सरफेस जो ज्योमेट्री टाइप है उसमें क्लैशेस आपको कैसे रन करना है, लाइक सरफेस या लाइंस या पॉइंट इंटरसेक्टिंग या सेल्फ इंटरसेक्टिंग। तो ये बेसिकली जो इनमें ऑप्शंस रहते हैं हम सरफेस एंड सेल्फ इंटरसेक्ट के ये ऑप्शंस हम ऑन रखते हैं। इसके अदरवाइज हमारे और कोई सेटिंग्स की नीड नहीं होती हमारे बेसिक रेविट मॉडल के क्लैशेस चेक करने के लिए। सो क्योंकि आप गो थ्रू हो सकते हैं इनके थ्रू, बिकॉज आपको अगर नेविस जो है इसका फुल ट्यूटोरियल लर्न करना चाहते हैं तो इनका जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए, यूज़ आए ना आए लेकिन आपको बेसिक अपडेट रहे इस वजह से। देन जब हम क्लैश रन करते हैं तो ये आपको 4 टाइप्स की ऑप्शंस मिलेंगी क्लैश रन करने में, लाइक हार्ड क्लैश आपको देखना है, हार्ड कंजर्वेटिव, क्लियरेंस क्लैश और डुप्लीकेट क्लैश। तो इसको हम आपको बताते हैं कि जब पाइप और हमारा डक्ट है अगर वो फुल्ली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मींस पाइप और डक्ट के बीच में रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो जो है हम टाइप हार्ड रखते हैं। एंड जब आप क्लियरेंस रन करना हो, मींस कि पाइप और डक्ट के बीच में कुछ गैप है बट मुझे
ये जो गैप है 13-15 फीट का, दोनों के बीच में मेंटेन करना है। हो सकता है कि आपको कोई क्लियरेंस चाहिए वॉकिंग के लिए या आपकी एक्सेसिबिलिटी के लिए, सो आप यहाँ पर जो है क्लियरेंस वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस में आप वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, जैसे 14 फीट और रन करेंगे टेस्ट। सो अब इस केस में जो है, जो हमारा थर्ड पाइप था जो कि क्लैश कर ही नहीं रहा था एक्चुअल में, बट हमें दोनों के बीच में क्लियरेंस मेंटेन करनी थी। सो वो क्लियरेंस फेल कर गया और यहाँ पर क्लैश में वो विजिबल हो जाएगा। और अगर आप हार्ड पे रन करेंगे तो वो क्लैश आपको विजिबल नहीं होगा, ओनली 2 क्लैशेस ही जो हमारे एग्जिस्टिंग 2 पाइप्स कट कर रहे हैं वही आपको विजिबल होंगे। सो इस टेस्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लाइटिंग फिक्सचर्स लगे हैं सीलिंग में, उनका बैक बॉक्स होता है, तो अगर वो आपने रेविट में मॉडल नहीं किया है, आप क्लियरेंस रखना चाहते हैं आपकी सर्विसेज का जो लाइट फिक्सचर है उससे 4 इंच का, सो आप क्लियरेंस के साथ इनके बीच में क्लैशेस देख सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है यहाँ पर स्टेटस असाइन कर, अप्रूव्ड और यहाँ पर असाइन किसको करना है, ये सब ऑप्शंस आप फिल करके जो है आपकी क्लैश डिटेक्शन रिपोर्ट एक्सपोर्ट दे सकते हैं और आपके टीम मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही जो क्लैश टेस्ट आपने बनाया है, फॉर सपोज HVAC वर्सेस फायर एंड आपने HVAC वर्सेस स्ट्रक्चर ऐसे करके कुछ 10 to 15 आपने क्लैश टेस्ट यहाँ पर बनाया है। सो आप उसको एक्सपोर्ट देकर आपके मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो बार बार उनको ये सारी सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेगी कि फर्स्ट टेस्ट में कौन सी फाइल चूज़ करनी है और टेस्ट के जो सेटिंग्स है वो क्या रखनी है। सो आप एक्सपोर्ट दे सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ रिपोर्ट आप शेयर कर सकते हैं, जो हमारे क्लैशेस आए हैं उनको आप XML HTML इस फॉर्मेट के अंदर सेव करके रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और लेटर ऑन PDF में प्रिंट देकर कन्वर्ट कर आप PDF भी शेयर कर सकते हैं। सो क्लाइंट और आपके टीम मेंबर के साथ आप रिपोर्ट भी शेयर करना चाहे तो रिपोर्ट शेयर करने का ऑप्शन भी आपको रहता है। सेम एज इट इज़ लाइक व्यू पॉइंट जो है हम रिपोर्ट में कन्वर्ट करके शेयर करते हैं। व्यू पॉइंट के ऊपर भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने देखी नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस हमारी देख सकते हैं। तो जो 2 क्लैशेस थे उनकी एक रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है HTML, और कंट्रोल P के थ्रू आप इसे प्रिंट देकर PDF के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे कि जो टेस्ट आपने रन किया अगर 4 to 5, सो उनको इंडिविजुअल आपको जो है सेपरेट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट देना है या कंबाइंड, वो सब ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो रिपोर्ट फॉर्मेट आप जो है रिपोर्ट एक्सपोर्ट दे सकते हैं एंड अनदर थिंग आप क्लैश टेस्ट जो आपने बनाए हैं उनको भी एक्सपोर्ट दे सकते हैं। सो 2 थिंग्स आप यहाँ से एक्सपोर्ट दे सकते हैं क्लैश डिटेक्टिव में। सो ये था हमारा क्लैश डिटेक्शन के बारे में। तो नेविस ट्यूटोरियल की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ वॉक थ्रू इन नेविस। इससे पहले अगर आपने कोई वीडियो मिस करी है इस नेविस सीरीज़ की तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको जो है फुल नेविस लर्न करने के लिए हमने सारी जो भी यूज़फुल वीडियोस है वो अपलोड कर रखी है। सो वॉक थ्रू इन नेविस मीन्स अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, आपका कोई स्ट्रक्चर है, आप उसको बिल्डिंग को जो है पूरा ओवरव्यू करना चाहते हैं, लाइक 1 by 1 रूम या 1 by 1 आप जो है उसके किसी एलिमेंट्स को देखना चाहते हैं, तो आप एक वॉक थ्रू क्रिएट कर सकते हैं नेविस के थ्रू भी। और अदरवाइज कुछ और भी प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि नेविस के से भी ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं, बट अगर आप नेविस के थ्रू ही वॉक थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका क्या मेथड रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड जो कि आप देख सकते हैं, हम सबसे फर्स्ट मेथड में व्यू पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं। मीन्स जो हमारा हाउस का फ्रंट था उसके पे एक व्यू पॉइंट क्रिएट किया, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं व्यू नाम से सेव हुआ। देन हम व्यू 1 हमने सेकेंड व्यू पॉइंट क्रिएट किया। देन हॉल में हमने एंट्री लिए और हॉल में एंट्री आने के बाद जो है हम एंगल सेट करेंगे। आप आपके व्यू पॉइंट क्रिएट करने से पहले एंगल वगैरह सेट कर लीजिए। देन जो है हमने थर्ड व्यू पॉइंट सेट किया। देन फिर हम किचन की तरफ गए और ये जो मूवमेंट है
जो हम रूम बाय रूम या किचन की तरफ जब जा रहे हैं तो हम जो हमारे नेविगेशन टूल होते हैं, जो कि आप राइट हैंड साइड कॉर्नर में देख सकते हैं, उनका और माउस का यूज़ करते हैं। सो वन बाय वन हम एक एक रूम में जाएंगे और जो व्यू पॉइंट सेव है वो व्यू पॉइंट सेव करते जाएंगे। व्यू पॉइंट कैसे बनाते हैं इसकी वीडियोस भी हम अपलोड कर चुके हैं। सो आपको जो है आपके हाउस के फ्रंट की, देन पोर्च की एंट्रेंस पर, और आपके हॉल पर, देन किचन पर, देन आपका जो रूम है, वन बाय वन सबके व्यू पॉइंट आप क्रिएट करेंगे। आप व्यू पॉइंट को रीनेम भी कर सकते हैं, आपके जैसा अभी व्यू 1 व्यू 2 के नेम से सेव हो रहा है, आप इन्हें सेव कर सकते हैं, लाइक हाउस फ्रंट, बालकनी, हॉल, किचन। उस हिसाब से भी आप जो है व्यू पॉइंट को नेम देकर सेव कर सकते हैं। और एंगल आपको सेट कर लेना है व्यू पॉइंट सेव देते समय, क्योंकि वही एंगल आपको जो है वॉक थ्रू के एनिमेशन में दिखेगा। तो इसी के साथ एक सैंपल अभी हम क्रिएट कर रहे हैं। आप जो है वन बाय वन आप कैसा वॉक थ्रू बनाना चाहते हैं, कितना डिटेल में वॉक थ्रू बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप व्यू पॉइंट सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने कुछ व्यू पॉइंट सेव कर लिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। और जो है आप और व्यू पॉइंट को जब सेव करते हैं तो आपको एंगल, आपको बिल्डिंग को किस डायरेक्शन से देखना है, इसके लिए आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आपको नेविगेशन टूल ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसके बाद व्यू पॉइंट बनाने के बाद हम एनिमेशन में गए, जो कि रिव्यू के पास हमारा होता है, और जितने भी हमारे व्यू पॉइंट थे उस व्यू पॉइंट को हमने एनिमेशन वाले जो फोल्डर जो नया क्रिएट हुआ उसके अंदर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही तो आपको एक प्ले का बटन दिखेगा। आप जैसे प्ले करेंगे एनिमेशन 1 को तो वो पूरे व्यू पॉइंट जो भी आपने क्रिएट किए थे वो वन बाय वन प्ले होने लगेंगे। उनके बीच में जो है आप टाइम लैप्स कितना रखना चाहते हैं ईच व्यू पॉइंट के बीच में, वो आप सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। सो ये एक हमारी 15 सेकेंड्स की वीडियो क्रिएट हो गई। सो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू क्रिएट द व्यू पॉइंट्स। सेकेंड स्टेप आप एनिमेशन टैब पे जाएंगे नेविस की, और एक जो है उस पर रिकॉर्ड का ऑप्शन करते ही आपके पास एक एनिमेशन 1 या जो भी नेक्स्ट होगा उस हिसाब से आपके पास सेव हो जाएगा। देन आपके जितने भी व्यू पॉइंट्स आपने बनाए हैं उन व्यू पॉइंट्स को उस एनिमेशन 1 के अंदर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और उसके बाद उस एनिमेशन 1 को आपको प्ले कर देना है। प्ले करते ही जो भी आपने व्यू पॉइंट्स बनाए थे वन बाय वन वो प्ले होने लग जाएंगे। तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड, जिसके थ्रू आप नेविस के अंदर वॉक थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारा व्यू पॉइंट बेस्ड रहता है। इसके साथ हमारा सेकंड मेथड और होता है, जिसके अंदर हम व्यू पॉइंट्स क्रिएट नहीं करते हैं। हम जो है जो नेविगेशन टूल बार आपको दिख रहे हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड के अंदर, जिसमें कि जूम होता है, पेन टूल होता है, ऑर्बिट होता है, वॉक थ्रू होता है, इसके थ्रू हम वॉक थ्रू करते हैं। और इस आप देख सकते हैं एनिमेशन के अंदर रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल रहा है। आपको रिकॉर्ड पर क्लिक करना है और आपको जस्ट वॉक थ्रू करना है आपके एरियाज पे, जो कि आप आपके एनिमेशन वीडियो में दिखाना चाहते हैं, और वो रिकॉर्ड ऑन रहेगा। और लास्ट में आप उस रिकॉर्ड को पॉज करके उसको सेव कर सकते हैं। सो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। इसमें हम जो है व्यू पॉइंट्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको जो भी बेटर लगे, अगर आप नेविगेट इजीली कर सकते हैं और तो आप नेविगेशन के थ्रू वॉक थ्रू बना सकते हैं। अगर आपको नेविगेशन में इश्यूज है तो आप जो है व्यू पॉइंट का यूज़ करके भी आप वॉक थ्रू बना सकते हैं। सो ये दो मेथड है। सेकंड मेथड जो कि हम नेविगेट कर रहे हैं वन बाय वन। सो इसमें आपको जो भी टूल इजी लगे आपको इन नेविगेशन टूल के उन टूल्स का यूज़ करना होगा। तो इसका सैंपल भी एक हम आपको बना के दिखा देते हैं। इसके साथ ही अगर आपको जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसमें कुछ डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक हमारा 20 बाय 50 हाउस प्लान है, जिसका वॉक थ्रू हम अभी क्रिएट कर रहे हैं। सो आपको फाइनल होने के बाद रिकॉर्ड पे अगेन प्रेस करना है, और जो है आपकी वीडियो एनिमेशन जैसा कि नेक्स्ट नेम एनिमेशन 2 के नाम से सेव होगी। सो फर्स्ट में आपको व्यू पॉइंट विजिबल हुए, सेकंड में कोई भी व्यू पॉइंट नहीं है। आपको डायरेक्ट प्ले करना है और आपकी वीडियो जो है प्ले होगी जैसे भी आपने वॉक थ्रू के अंदर सीन्स स्टार्ट किए थे। सो ये था हमारा सेकंड मेथड। आप कमेंट करके बताइए आपको जो है कौन सा मेथड ज़्यादा इजी और बेस्ट लगा, और व्यू पॉइंट क्रिएट करके और जो है नेविगेशन टूल का यूज़ करके रिकॉर्ड करके देख सकते हैं आप
सो जो हमारा सेकंड मेथड था नेविगेशन टूल का यूज़ करके और रिकॉर्डिंग ऑन रखकर एनिमेशन के अंदर इसके थ्रू जो वॉक थ्रू क्रिएट हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा वॉक थ्रू क्रिएट हुआ है। सो अगर आपके प्रोजेक्ट में डिमांड है कि आपको वॉक थ्रू क्रिएट करना है तो आप इन टूल का यूज़ कर सकते हैं और क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। मोर वॉक थ्रू डिटेल और वॉक थ्रू की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए अदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो उनका भी जो है कंपनीज यूज़ करती हैं। रेंडरिंग क्वालिटी उनकी अच्छी हो जाती है वीडियोस की और अदर प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। बट अगर नेविस से अगर आपको बेसिकली आपका यूज़ हो रहा है और आपको एक सैंपल देना है तो आप नेविस का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारा नेविस की जो सीरीज़ है उसका मोस्ट जो पार्ट 80% हम अपलोड कर चुके हैं और 3-4 और लास्ट वीडियोज़ आएगी, उसके बाद हमारा जो नेविस ट्यूटोरियल है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप एनिमेशन एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, आप एक्सपोर्ट दे सकते हैं एनिमेशन को आपकी सेटिंग्स के हिसाब से और आपकी जो फाइल है आपके लोकल पाथ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी। धन्यवाद।